Good morning, students. In our last class, we have studied the Newton's first law of motion. Also, we have discussed some of the basic terminologies that are related to the term motion, right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the Newton's second law of motion. Newton has given us three laws to explain the motion of an object in the on Earth, right? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पर सिचुएटेड उन सब के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने हमको तीन लॉज दिए थे. In that, the first law was based on the inertia that we have already discussed in our last class. Now today we are going to discuss the Newton's second law. So Newton's second law states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force being applied on that object. मतलब किसी बॉडी पर आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा चेंज होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेगा, राइट? तो जब वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा. तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जितना ज़्यादा फोर्स मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा, और जितना कम फोर्स मोमेंटम में चेंज उतना ही कम, राइट? वी कैन इजीली say this. Now, also one thing that we have discussed, that momentum is equals to mass into velocity. So on putting the value of this thing we know, right? So we have written we know that. अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दें, so we have got divided by dt, right? हमने p की वैल्यू पुट कर दी, that is mv here, and we have just noted it down like this only. Now we know that the mass of a body is constant. किसी भी बॉडी का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है under any circumstances, right? So since the mass of a body is constant, so it will come out of the differentiation. क्योंकि हमको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और डिफरेंट कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट f is proportional to m dv by dt, right? Now dv by dt, that is the instantaneous change in velocity, or by the definition of instantaneous change in velocity we know that dv by dt is equals to acceleration, right? So from here I will get this f is proportional to m into a, that is mass into acceleration. Also one thing I can do from here, यहाँ से अगर मैं proportionality का साइन हटाऊंगा, so I have to introduce a constant here and let that constant be k. और अगर हम बात करें SI सिस्टम की, तो SI सिस्टम में इस k की वैल्यू होती है 1. So from here I will get F is equals to ma, right? F is equals to ma. This is the formula for the force that we have got from the Newton's second law of motion, which is very important, right? This formula is very important. Also, the mathematical interpretation of the Newton's second law of motion is also very important, right? अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt इनवर्स स्क्वायर, जो हमने कल पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स विल बी न्यूटन. सिंस फोर्स हमारे पास न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, इसलिए उसकी एसआई यूनिट भी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, दैट इज न्यूटन, राइट? Now let us solve some simple numericals that are based on the second law of motion, that is F is equals to ma, or F is proportional to dp by dt, right? एक simple सा question consider करते हैं. Suppose the mass of an object is given to us as 0.01 kg and
the acceleration of that object is given to us as 10 meter per second. Then we have to find out the force that is being applied on the body. Okay, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा, हमको एक बॉडी का मास पता है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, जिसके कारण उस बॉडी का इतना एक्सेलरेशन होगा. दिस थिंग वी हैव टू सॉल्व. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग? वी नो दैट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma. सबसे पहले तो हमने चेक किया कि सारी चीजें जो है वो SI सिस्टम में है या नहीं, राइट? So when we have checked it, we see कि mass जो है उसके SI unit kg, right? Correct. Acceleration meter per second, that is also correct. Force की value हमको नहीं पता है, that's why we have question mark here. F is equals to ma. हमारे पास formula है, हमने इसमें values put की. mass की value हो गई 0.01 into acceleration हो गया 10, right? यहाँ से अगर मैं decimal हटाऊँ, so I have to put 2 zeros here, और जब यहाँ से एक zero cancel, so from here I will get 0.1, and the unit of force is Newton. That's why I have got the force being applied on that object is equals to 0.1 Newton, right? This is a very simple kind of question, जहाँ पे हमको simply F और M और A दोनों की values दी हुई थी और हमको F की value निकालनी थी, and we have just solved it और हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट? सिमिलरली कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अस एज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, ऑल्सो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमको दी हुई है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. लेट the time taken for this change in velocity be 5 seconds, right? Let the mass of the body is given to us as 15 kg. Then we have to find out the force being applied on that body. अब F is equals to ma हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है to find out the value of force. बट यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मास तो दिया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है, राइट? सो सबसे पहले हमको इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, देन वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ force here, right? So first of all students, we know that the formula for finding the force is equals to mass into acceleration. This is the formula, right? So how we can find out the value of this force? m तो है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं, राइट? तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v minus u upon में t. So I have written the formula here that v minus u upon में t. v की जगह मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, that is 5. u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी 2. टाइम की जगह t की जगह टाइम की वैल्यू पुट कर दी, that is 5. 5 minus 2 will be 3 by 5. So this will be the value of acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी. ओके, तो जस्ट करेक्टेड. सो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम हियर. नाउ अब हमारे पास मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, सो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. मास आ गया 15, एक्सेलरेशन आ गया 3/5, 5 से ये कैंसिल, 5 दिया 15, 3 3 जा 9. So the value of force being applied on that body is equals to कितना 9 न्यूटन, राइट? तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पर? The force being applied on that body is equals to 9 Newton. So in this way we can solve the numericals that are based on the force, that is F is equals to ma, or that is the Newton's second law of motion, right? एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ a force of 5 Newton being applied on the body if the body is at rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
और उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दैट बॉडी, राइट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू अस कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है, अगर उस पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है कि उस बॉडी का मास कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू तो है, मास की वैल्यू नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास वेलोसिटी है और टाइम है ना। अब सिर्फ सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिया होगा तो हमको इनिशियल वेलोसिटी कितनी माननी पड़ेगी, 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज रेस्ट में अगर रखा हुआ है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, v की जगह v की वैल्यू आपने पुट की दैट इज 10, u की जगह u की वैल्यू दैट इज 0 और टाइम कितना लग रहा है 5, ये हो जाएगा 10/5 एंड 10/5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, आपके पास फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी है, तो अब हम सिंपली उस बॉडी का मास निकाल सकते हैं। फॉर दिस वी आर हैविंग द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ सो आई विल गेट माई आंसर। F की जगह हमने पुट कर दिया 5, मास हमको निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2, सो फ्रॉम हियर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल्स टू 5/2 और m इज इक्वल्स टू 2.5। SI यूनिट इज kg, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन kg हियर, राइट। सो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जहां पर हमको सिर्फ चीजों को सॉर्ट करके और वैल्यूज निकालनी थी, एंड वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट दैट m इज इक्वल्स टू 2.5 kg। सो इस तरीके से एक सिंपल से क्वेश्चन, एक सिंपल फॉर्मूले से आपसे देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमको क्लियर होना चाहिए। और अब जैसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के लिए हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीछे वाली जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं उनके फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशंस भी हमको पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, राइट। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी मोमेंटम, मोमेंटम पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो let the momentum of the body is equals to 5 kg meter per second and the mass of the body is equals to 10 kg, and we have to find out the velocity of the body, that is v. So how we can solve this type of questions जब हमारे पास momentum दिया हो, mass दिया हो और velocity पूछी हो, तो simply we can solve this question by just putting the values in the formula p is equals to mv, right. We know that the formula of momentum is p is equals to m dot v, that is momentum is equals to mass into velocity. आपने values put कर दी, momentum की जगह we have put 5 here, mass 10 हो गया, velocity हमको नहीं पता है, that's why I have written v here. यहाँ से अगर मैं velocity की value निकालूं, so velocity is equals to 5/10 and 5/10 is equals to 0.5, yeah, it is 0.5 meter per second. So the velocity of the object will be equal to 0.5 meter per second. In this way we can solve the simple numericals that are based on
the force and momentum of the body, right? Now proceeding ahead, let us come to our next topic, that is the impulse. What do we mean by the term impulse and what are the practical applications of the impulse? That thing we are going to see here. क्या समझते हैं हम impulse से और impulsive force से, that thing we are going to discuss here. Okay, so impulse का मतलब क्या होता है? Impulse सबसे पहले तो बेसिकली एक तरह का फोर्स ही होता है. ओके, इम्पल्स इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली. जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाते हो तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द इम्पल्स, राइट? सो जब ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द इम्पल्सिव फोर्स. अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्रिकेट बैट और बॉल, राइट? जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बैट और बॉल के बीच का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, राइट? सो इस तरह का फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो, उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स. और बैट एंड बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन बैट एंड अ बॉल इज वेरी लेस. सो यहां से हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, राइट? यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. फोर्स इज एफ, टाइम इंटरवल इज डेल टी एंड इम्पल्स इज आई, राइट? सिंस यहाँ पर टाइम जो है वो स्मॉल है और हम छोटे समय की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने टाइम इंटरवल को डेल टी से रिप्रेजेंट किया, इम्पल्स को आई से डिनोट किया. अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt इनवर्स स्क्वायर. टाइम का लिए लिख देंगे हम t. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज -2 + 1, दैट इज -1. So from here we will get the dimensional formula of impulse is equals to mlt minus 1. और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड. तो न्यूटन सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ impulsive force, right? So this is the value of force that we have got from here, right? Now एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, that is being based on the impulsive force. Impulsive force पर based एक सिंपल न्यूमेरिकल. Now one numerical is given to us here. First of all, let us read the numerical. A hammer of mass 1 kg moving with a speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest in 0.1 second. एक हैमर है जिसका मास है 1 kg, वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप उसको वॉल पर उससे पुश कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, है ना? एंड दैट कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड. और वो जो हैमर है वो 0.1 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाता है हैमर वॉल से टकराने के बाद. सो वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स हियर. सबसे पहले इम्पल्स निकालना है और दूसरी चीज हमको रिटार्डेशन निकालना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास. सबसे पहले हैमर का मास दैट इज गिवन टू अस. हैमर का मास हमारे पास गिवन है 1 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास उसकी इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में आपको दिया हुआ है कि वो जो हैमर है वो रेस्ट में आ जाता है. तो जब हैमर रेस्ट में आ जाता है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? और रेस्ट में आने में उसको समय कितना लगा? सो रेस्ट में आने में उसको जो समय लगा दैट इज 0.1 सेकेंड. सो हमने लिख दिया कि हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है, वी हैव नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स. मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, ये सारी चीज़ें हमको गिवन है. हमने सारी चीज़ें पुट कर ली, राइट? नाउ अब हमको निकालना है सबसे पहले तो इम्पल्सिव फोर्स, मतलब उस पर कितना इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट.
तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, राइट। टाइम तो हमको पता है लेकिन फोर्स की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली नहीं दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, फोर्स को लिख लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम के लिए हम लिख लेते हैं डेल टी हियर, राइट। ऑल्सो वन थिंग वी नो, एक चीज और हमको पता है कि जो फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, टाइम को यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। इम्पल्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाय टी, एंड दिस टी आई हैव नोटेड डाउन एज इट इज, राइट। मैंने सिंस मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने एक्सेलरेशन को भी u और v की टर्म्स में लिख लिया। t से t कैंसिल हो गया, what do we have got from here, m v minus u, right? So यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, सारी चीजें पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 1, v हमारे पास आ गया 0, माइनस u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई -6। So from here I have got impulse is equals to -6 Newton second, right? So this is the value of impulsive force that is acting on the body that I have got from here. तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया कि हमने इम्पल्स निकाल लिया, दैट इज I इज इक्वल्स टू -6 न्यूटन सेकेंड। अब बात करते हैं कि जो हैमर है उसका रिटार्डेशन कितना होगा, राइट। सो फॉर दिस थिंग वी नो दैट द इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, और यहाँ पे इम्पल्स इसके साथ मैच नहीं हो, इसलिए मैं उसको फॉर माय कन्वीनियंस मैं उसको जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। ऑल्सो मुझे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, जब मुझे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसको लिख लिया J बाई टी, और जो J है दैट इज जो इम्पल्स है उसकी वैल्यू हमारे पास है 6 ईयर। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमसे रिटार्डेशन पूछा है और रिटार्डेशन नेगेटिव ही होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इम्पल्स वाला नेगेटिव जो है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। टाइम हमारे पास गिवन है 0.1, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द फोर्स इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, राइट। यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 न्यूटन। अब हमसे रिटार्डेशन पूछा है, सो रिटार्डेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, और मुझे पता है F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो वही हमारा रिटार्डेशन भी होगा, राइट। तो फोर्स मैंने पुट कर दिया 60, मास मुझे गिवन है 1 kg, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिंस रिटार्डेशन पूछा है दैट्स व्हाई हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, विच इज इंडिकेटिंग दैट the hammer is having a retardation instead of the acceleration, okay. So this will be our answer, that is -60 meter per second square. So in this way students we can solve the numericals that are based on the impulse, okay. Now in our next class we will study our next topic, that is the Newton's third law of motion. Also we are going to discuss the graphical representation of impulse, and we are going to solve some numericals that are based on that kind of pattern, okay. So that's all for today's class. Thank you.